Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the e-learning classes of Hudaybiyah Model School for Class 9, Subject Biology, Lecture number 1st. Today we will start Unit 5, Cell Cycle. Before going towards cell cycle, I should remind you what is cell. Cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all of life processes. हम पढ़ चुके हैं कि सेल जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सिमिलरली यूनिट नंबर 4 में हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था जिसके मेन पॉइंट्स थे सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, all organisms are made of one or more cells. Cell arise from pre-existing cells through cellular division. यानी दुनिया के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। सिमिलरली जितने भी सेल हैं हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो पुराने सेल से डिवाइड होकर दोबारा बनते हैं। नाउ व्हाट इज सेल साइकिल? When a cell divides, it produces daughter cells. The daughter cells grow in size and begin to perform their functions. After maturity, daughter cells divide again and produce their next generation. So we can define cell cycle as a cell cycle is a series of events that takes place in a cell as it grows and divides. यानी जब भी एक सिंगल सेल डिवाइड होता है तो वो टू डॉटर सेल पैदा करता है। यही डॉटर सेल जो है वक्त के साथ साथ साइज में ग्रो करते हैं और अपना फंक्शन बॉडी में परफॉर्म करते हैं। जब ये डॉटर सेल पूरी तरह से मेच्योर हो जाएं तो ये दोबारा से डिवाइड हो जाते हैं और ये प्रोसेस फिर से रिपीट होता है। इसी को हम सेल साइकिल कहते हैं जो कि कंटिन्यूसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होता रहता है ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ के ज़रूरी काम परफॉर्म कर सके, अपनी जनरेशन को मेंटेन रख सके और अपने तमाम नेसेसरी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। सेल साइकिल मेनली कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। नंबर फर्स्ट इज इंटरफेस स्टेज और resting stage. The second one is known as division phase, which is also known as mitotic or meiotic phase. So the process of mitosis and meiosis will be discussed in division phase, but before that we will discuss about interphase stage. What is interphase or resting stage? The longest part of the cell cycle is the interphase stage. It is the period between the end of one cell division and the start of next division. In interphase, the nucleolus and the nuclear envelope are distinct and the chromosomes are in the form of thread-like chromatin. यानी सेल साइकिल में इंटरफेस स्टेज जो है ये सबसे लॉन्ग पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में ही लगता है। और ये कौन सा पीरियड होता है जब एक सेल डिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और वो दोबारा जब खुद को फिर से प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए तो उस दौरान में वो जिस स्टेजेस से गुजरता है उसे हम इंटरफेस स्टेजेस कहते हैं। Before going further, one must know the basic things which will be discussed in this lecture again and again. For example, chromosomes. ये आप देख सकते हैं ये सेल की डायग्राम है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। उसके अंदर ये थ्रेड लाइक यानी धागों की तरह जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये वाला पार्ट न्यूक्लियोलस कहलाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस को दरअसल न्यूक्लियस का ब्रेन भी कहते हैं। तकरीबन 25% न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियोलस ने ही पकड़ा होता है। इंटरफेस और resting stage is further divided into three phases. Number one is known as G1 phase. The second one is known as S phase. S stands for synthesis. The third one is known as G2 phase. There is also one additional phase which is known as GO phase, or you can also say G0 phase or G0 phase. Now we will discuss them one by one.
The first phase of interphase is known as G1 phase, where G stands for gap. G1 phase is the first and the longest subphase of the interphase. In this phase, protein supply to the cell increases, enzyme number increases, cell grow in size because organelles within the cell like ribosomes, Golgi apparatus, etc. amount is increased. In short, it prepares daughter cells for DNA replication. इंटरफेस का जो सबसे पहला पार्ट स्टार्ट होता है वो G1 फेस कहलाता है। G1 फेस सबसे लेंथी सबसे लॉन्गेस्ट फेस होता है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। इस फेस में क्या होता है कि सेल के अंदर प्रोटीन की सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली एंजाइम के जो नंबर्स है सेल के अंदर वो भी बढ़ जाते हैं। इस वजह से सेल का जो साइज है वो ग्रोथ करने लगता है, क्योंकि सेल के अंदर जो मौजूद ऑर्गेनल्स होते हैं जिस तरह राइबोसोम्स है, गोल्जी ऑपरेटर्स है, उनकी अमाउंट जो है वो बढ़ती जाती है। इस वजह से जो है सेल साइज में इंक्रीज करता रहता है। और ये सारे प्रोसेस इसलिए होते हैं ताकि ये सेल खुद को प्रिपेयर कर पाए डिवीजन के लिए या डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। After completing G1 phase, the cell enters into S phase. Further, the cell sends its chromosomes for duplication to S phase. S means synthesis. Here, the chromosomes present within the cells are duplicate, so each chromosomes will now have two sister chromatids. S का मतलब होता है synthesis, किसी चीज की synthesis. एस फेस एक ऐसा फेस है जिसमें सेल अपने अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स की अमाउंट को डुप्लीकेट करता है, यानी कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं। अब जब क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करते हैं तो इस नतीजे में ये होता है कि हर क्रोमोसोम्स के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाते हैं, यानी हर क्रोमोसोम जो है वो फिर मुश्तमिल होता है अपने टू सिस्टर क्रोमेटिड्स पे। सेल ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट एस फेज। यहाँ पर भी सेल ग्रोथ जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, यानी सेल का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोटीन की सिंथेसिस और एंजाइम्स के नंबर जो है ये यहाँ पर भी इंक्रीज होते रहेंगे। इस वजह से सेल जो है वो साइज में ग्रोथ करेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स का जो मिड पॉइंट होता है उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये टू सिस्टर क्रोमोसोम्स को आपस में होल्ड करके रखता है। द लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज इज नोन एज G2 phase. A final event in interphase is G2 phase. In this phase, mitosis process is mostly performed. यानी G2 phase एक ऐसा फेज है जिसमें मोस्टली माइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है, यानी इसमें माइटोसिस का प्रोसेस ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन की फॉर्मेशन इसमें होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह इसमें बनती हैं, यानी कि सेल ने माइटोटिक फेज में जाना होता है। इसमें एक और फेज इंक्लूडेड होता है एम फेज यानी मेटाफेज, यानी इसमें जो सेल है वो मेनली डिवाइड करता है। There is one additional phase which is known as G0 phase or G0 phase. Sometimes few cells of the body goes to resting stage during a cell cycle, which is also known as non-dividing stage. Such phase is known as G0 phase. So in this phase the cell stops dividing. यानी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अचानक सेल साइकिल के दौरान रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, यानी कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज में चले जाते हैं। यानी ये वो फेस है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करते, रेस्ट पे चले जाते हैं। अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी 3 कैटेगरीज आती हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली G0 फेज में चले जाते हैं, यानी वो सेल्स फिर दोबारा कभी डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन सेल्स यानी हमारे ब्रेन्स के जो सेल्स हैं, ये एक बार डेवलप हो जाएं तो ये G0 फेज में इनडेफिनेट टाइम के पीरियड के लिए चले जाते हैं, यानी ब्रेन के सेल जो हैं वो दोबारा कभी भी रीडिवाइड नहीं करते। Some cells are semi-permanently.
फॉर एग्जांपल लिवर, किडनी सेल्स। यानी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो सेमी परमानेंटली G0 फेज में, यानी G0 फेज में वो कुछ वक्त के लिए एंटर कर लेते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा से डिवीजन शुरू कर देते हैं, जिस तरह लिवर के या किडनी के सेल्स हो गए। while some cells never go to G0 phase, for example epithelial cells। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कभी भी रेस्टिंग स्टेज पे नहीं जाते। फॉर एग्जांपल हमारे एपिथेलियल सेल्स टिश्यू हो गए, जिस तरह हमारे स्किन के सेल्स है, ब्लड वेसल्स है, यूरिनरी ट्रैक है, एक्सेट्रा। ये कभी भी G0 फेज में नहीं जाते, मतलब कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। This is a description about interphase, where the first phase is known as G1 phase, where growth in size of cells occurs, chemical changes in cell occurs, synthesis of RNA, ribosomes and enzymes occurs. After that, the cell enters into the S phase, which is synthesis phase, where duplication of chromosomes occur and growth in size of cell continues. After that, the cell enters into the G2 phase, where preparation of proteins for division starts. That was all for today. In next class, we will study about division phase. Till that, take care of yourself. Allah Hafiz.